Hey everyone, in this particular video we are going to discuss about the Payments Vision 2028. So this is a report which is recently released by the Reserve Bank of India. Okay. So सबसे पहले तो ये समझते हैं कि रिपोर्ट कौन रिलीज करता है. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, राइट, इट्स अ डिपार्टमेंट इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, एंड दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड अप टू 31st December 2028. So it is released definitely in 2026, but it is related to the vision of Reserve Bank of India related to the payment system December 2028 तक का, right? So ये RBI का विजन है, बेसिकली RBI का प्लान है. इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी गई है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी जल्दी ही इंप्लीमेंट करने वाला है इस ड्यूरेशन के अंदर. एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ डिजिटल पेमेंट एंड द पेमेंट विजन 2028. सो इससे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं फटाफट से. यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड द ऑलिव बोर्ड एप्लीकेशन. देयर विल बी गेटिंग ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू ईच एंड एवरी सेशन. प्लस ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ ऑलिव बोर्ड एज वेल, राइट. प्लस इफ यू आर लुकिंग फॉर finance specific group, learning group, so I frequently share finance related content on that particular group. If you type CA Prateek Finance, CAPRETEEK Finance on Telegram, you will get my group link. You can ask me queries as well in case if you have any, right? So let's get the discussion started, guys. Let's first understand the background about this payment vision document, and then we are going to discuss about the document in a very detailed manner. So it's close to 17 page डॉक्यूमेंट. तो यहाँ मैं उसको डिटेल में ही कवर करूंगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाइज भी और डिस्क्रिप्टिव वाइज भी, बट इसमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस बन जाता है. अच्छा, पेमेंट सिस्टम हमारा चैप्टर भी है, तो उसी से रिलेटेड आपका एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, और उसके अंदर आप ये वाली रिपोर्ट का रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी सारी लाइन्स भी इस रिपोर्ट में से आप यूज़ कर सकते हो. So the very first thing that we need to know here is RBI is periodically releasing this particular vision document. It is the kind of vision document कि आने वाले टाइम में what are the steps Reserve Bank of India is going to take related to the payment ecosystem, right? For the development of India's payment ecosystem. And since 2001, this is important, since 2001 Reserve Bank of India has issued multiple vision documents for the payment infrastructure and promoting the digital payment. Now RBI is having a good vision related to the payment system, and that's why we are ahead of the world, I can say, in the payment infrastructure and in the payment instrument usage, right? So this is the report, guys, that we are going to study, Payment Vision 2028. This was released recently only on 27th of March 2026, and today itself we are going to cover it. So this report is broadly divided into 3 sections, okay? Mainly 3 sections are there. The first one is payment vision document over the years. So this is nothing but a quick background about the payment vision documents which were released over the period of so many years, right? Section number 1 is related to background mainly. Section number 2 is related to your payment vision for the year 2028. In a summarized manner, they have given the payment vision of 2028, and specific initiatives are given in a detailed manner in the section 3. Right, so section 2 and section 3 will go hand in hand, right? First let's quickly discuss about the background of this payment vision document, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं पेमेंट विजन की, कि आरबीआई का क्या विजन है और स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स जो क्या हो सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर. सर, जो स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिए हैं, क्या उतना ही करेंगे, क्या उससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्या? अरे यार भाई, बिल्कुल करेंगे. दीज आर सम ऑफ द स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स एंड इट इज मेंशन्ड क्लियरली इन द रिपोर्ट. वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दीज specific initiatives only. If anything comes up, eventually we will adopt that measure as well. So this is not just limiting, this report is not limiting itself to the specific initiatives which are stated in this report, but we are definitely open to new initiatives as well which come up eventually. So next thing that we have to discuss here is the scale of operations in India, particularly about the digital payment. So India currently processes nearly 50% of the global real-time digital payments. पूरे वर्ल्ड में we are processing nearly 50% of the global real-time digital payments, not just in India, but in the whole world. We are leader in terms of digital payments, right? We all know the success of UPI, which has a huge contribution in the digital payment volume as well as value in India, right? तो अभी हम 50% global
रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स का अकाउंट फॉर करते हैं. दैट्स अ ह्यूज नंबर गाइज, राइट? दैट्स अ ह्यूज नंबर एंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस रिपोर्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर इटसेल्फ. So you can also mention this particular thing in your descriptive question. If you get any in the examination, you can definitely mention this particular thing. You can also give the reference of the report from which you have taken it, right? India today processes nearly 50% of the global real-time digital payment, making it one of the largest digital payment ecosystem in the world. You can definitely use this line, important. And guys, what I have done in this particular video or any other video which I post, I also paste the screenshots from the reports itself. तो उससे आपको फील आएगा कि रिपोर्ट भी पढ़ रहे हो और साथ में आप मेरे शॉर्ट नोट्स भी पढ़ रहे हो, राइट? सो शॉर्ट नोट्स के अंदर तो पूरा क्रक्स कवर होता है और रिपोर्ट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने सारी येलो कलर से हाईलाइट कर दी है, राइट? आपको हाईलाइट करके राइट हैंड साइड में सारे स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू द रिपोर्ट एज वेल. नाउ सम कोर प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो स्टेटेड इन द आरबीआई पेमेंट इकोसिस्टम, तो उनसे रिलेटेड भी डिस्कशन कर लेते हैं. द कोर प्रिंसिपल्स आर कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, राइट? कि यूजर को कन्वीनियंस मिले, अल्टीमेटली जो भी हम डिजिटल पेमेंट्स में चीजें बना रहे हैं यूजर्स को उससे हेल्प मिले, राइट? सेफ्टी बाय डिजाइन, सेफ हो. एंड इंटर ऑपरेबिलिटी, दैट मीन्स ऑन मल्टीपल सिस्टम इट शुड वर्क टुगेदर, राइट? ऑन डिफरेंट सिस्टम इट शुड कोलैबोरेट rather than just operating independently. So 3 core principles are there which is guiding the RBI payment ecosystem: consumer centricity, customer centricity, safety by design, and interoperability, right? And Vision 2028 focuses on deepening the trust, improving resilience, and enhancing the cross-border payments, promoting innovation using AI and data-driven approach, right? So चलो चालू करते हैं रिपोर्ट को गाइज. और द कोर थीम हियर इज शेपिंग इंडियाज पेमेंट फ्रंटियर. So the core theme is shaping the India's payment frontier. The focus is on strengthening the existing infrastructure. Whatever existing infrastructure we are having, we have to strengthen it. Plus, we have to also develop next generation payment technologies here, right? और ये विजन डॉक्यूमेंट कब तक का है हमने वो देख लिया, आपके दिसंबर 2028 तक का है, राइट? सो द फोकस विल बी ऑन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट. तो इससे रिलेटेड हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाले, इनोवेशन से रिलेटेड, यूजर एम्पावरमेंट एंड फ्रॉड प्रिवेंशन से रिलेटेड भी आरबीआई अभी अग्रेसिवली यहाँ पे डील कर रहा है, राइट? अच्छा, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप इसको यूज कर सकते हो कहीं पे भी डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के अंदर, आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के अंदर. द रोल ऑफ आरबीआई हैज इवॉल्व्ड further from not being just a regulator. Now RBI is not just a regulator when it comes to digital payments or when it comes to the payment infrastructure. RBI has to also drive innovation, right? RBI का रोल अब सिर्फ रेगुलेटर का नहीं रहा है, आरबीआई को ड्राइव करना है इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ पेमेंट. सो दिस इज अ वेरी अमेजिंग लाइन, यू कैन डेफिनेटली यूज इट इन योर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एज वेल. अब इवॉल्व कैसे हुआ आरबीआई का पेमेंट विजन डॉक्यूमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? तो यहाँ पे देखो ब्रॉडली काफ़ी एक लंबी हिस्ट्री है 2001 से लेके आज तक की. सो उसको फटाफट से पहले डिस्कस कर लेंगे, उसका एक चार्ट भी देख लेंगे, एंड देन विल बी मूविंग टू द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो कि आगे जाके 2028 तक के लिए 2028 तक के लिए आपका क्या विजन है, राइट? सो सबसे पहले तो फाउंडेशन फेज आता है 2001 से 4 तक का. तो ये बिल्कुल बेस बना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बना. तब हमारे पास सिर्फ पेपर इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे जैसे कि चेक्स, राइट? अब पेमेंट करने के नाम पे तब चेक ही चलता था. 2001 2004 के अंदर सिर्फ चेक ही बनाए जाते थे, तब ये सब आरटीजीएस और ये सब नहीं हुआ करता था, राइट? सो इट वाज ड्रिवन बाय, इट वाज डोमिनेंटली पेपर इंस्ट्रूमेंट्स, प्राइमरली द चेक्स ओनली, राइट? सो दिस वाज द बिल्डिंग ऑफ द फोकस वाज बिल्डिंग अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्रिवन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर विच वी अर्लियर was not having, right? So उसके बाद 2004 के अंदर आरटीजीएस आ गया, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज आ गई, चेक ट्रंकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ. सो ये सारी चीजें बेस बनी पेमेंट सिस्टम का, राइट? दिस वाज द बेस स्टेज. फिर इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटरी फेज आया. अब उनको लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दिया गया 2005 से 2008 तक, राइट? सो वहां पे क्या हुआ, क्रिएशन ऑफ डीपीएसएस हुआ. डीपीएसएस क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम. डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, आरबीआई के अंदर ये डिपार्टमेंट फॉर्म हुआ. पेमेंट एंड सिस्टम सेटलमेंट एक्ट आया, राइट? सो पीएसएस रेगुलेशंस आ गए काफी सारे, और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आया, विच इज ऑल्सो नोन एज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन. यू कैन सी आई हैव हाईलाइटेड ईच एंड एवरीथिंग हियर विच कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन विद इन दिस रिपोर्ट ऑल्सो. सो लेफ्ट साइड में तो आपको मेरे शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जो आपको पढ़ने,
राइट साइड में आपको कुछ ऐसी लाइंस मिलेगी जो आप डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के अंदर आराम से यूज कर सकते हो, डेफिनेटली आपके मार्क्स बेटर हो जाएंगे इससे, सही है। सो यहाँ पे एनपीसीआई को क्या बोल दिया गया, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिटेल पेमेंट्स बोल दिया गया। फिर उसके बाद अगला स्टेज आया 2009 से लेके 12 तक का, विच वॉज ओवरसाइट एंड एक्सपेंशन फेज। फिर इस वाले फेज के अंदर क्या हुआ देखो, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, एक्सेसिबिलिटी ऑफ द पेमेंट सिस्टम एंड एक्सपेंशन ऑफ एनईएफटी एंड आरटीजीएस सिस्टम यहाँ पे हुआ। अब सर ये हमारे क्या काम का है, ब्रीफ हिस्ट्री। कभी भी पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आप एक ब्रीफ हिस्ट्री लिख सकते हो, उससे आपको थोड़ा कंटेंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, प्लस एग्जामिनर को भी आइडिया लगेगा कि अल्टीमेटली आपको क्या क्या चीज़ें कितने लेवल तक आती है, राइट। फिर उसके बाद कुछ सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क यहाँ पे स्ट्रेंथन हुए, राइट। फिर पार्ट 4 के अंदर 2012 से लेके 2015 तक इंक्लूजन एंड स्टैंडर्डाइजेशन फेज था। तो यहाँ पे नई नई चीज़ें आई, जैसे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आया, क्या होता है हम आगे डिस्कस करते हैं, यहीं डिस्कस कर लेते हैं। खैर मोबीक्विक आपने नाम सुना होगा, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, पहले उसमें पैसे डालते हो, राइट। फर्स्ट यू ऐड द मनी इन द वॉलेट एंड देन यू पे इट, सो दैट्स अ काइंड ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हो गया जो आपके मोबाइल वॉलेट्स होते हैं, जैसे मोबीक्विक हो गया, राइट। फिर ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम आया, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे प्रूव हुआ इंडिया के अंदर। क्या होता है हम आगे देखते हैं। भारत बिल पेमेंट सिस्टम आया, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आया, और उसके रिलेटेड काफ़ी सारे सर्कुलर्स भी आने चालू हुए। फिर 2016 से लेके 18 तक वॉज द टाइम ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सबसे पहले, और सबसे ज़बरदस्त यूपीआई का लॉन्च हुआ, एनपीसीआई आया यूपीआई लेके, राइट। फिर उसके बाद 6th फेज के अंदर विच वॉज अ मेजरेबल आउटकम फेज। अब क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो चुकी थी तो डेफिनेटली हमारा आउटपुट जो है वो भी तो मेजरेबल होना चाहिए। अब इतने सारे इनिशिएटिव्स हुए हैं तो उसका रिजल्ट का टाइम आ गया, राइट। और दिस वॉज द थीम ऑफ एम्पावरिंग एक्सेप्शनल ई पेमेंट एक्सपीरियंस वेयर सेफ्टी, सिक्योरिटी, कन्वीनियंस, नीड एंड अफोर्डेबिलिटी वॉज द की टारगेट, और आई कैन से की फीचर्स। तो यहाँ आरबीआई का मेन रोल ये था कि भाई जो चीज़ें हम लेके आ चुके हो उसको कैसे अच्छे से सेफली और कन्वीनियंस के साथ यूज़ किया जाए ताकि कभी किसी को प्रॉब्लम ना आए, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं ग्लोबलाइजेशन फेज की, जो 2025 से चालू हुआ, राइट। दिस इज द ग्लोबलाइजेशन फेज एंड द थीम हियर वाज ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। सो 4 E's वर देयर, ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर एंड एवरी टाइम, राइट। 4 E's वर देयर। अब यहाँ पे रोल ये था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा यूपीआई को इंटरनेशनलाइज करो। आप देख सकते हो बाहर की कंट्रीज़ भी आजकल यूपीआई यूज़ करती है, राइट। रिसेंटली भी एक कंट्री के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था, आपने डेफिनेटली फाइनेंस करंट अफेयर सेशन के अंदर देखा होगा, एंड प्रोजेक्ट नेक्सस भी आया। सो ये सारे इनिशिएटिव्स थे कि हर जगह यूपीआई आए ताकि हम सीमलेसली आराम से ट्रांजैक्शन कर सकें, और ना कि सिर्फ यूपीआई बट डिजिटल पेमेंट्स की बात हो रही है, एज अ होल पेमेंट स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। So this was the entire evolution of the digital payments, right? 2001 से लेके 2025 तक, एंड एज ऑफ नाउ 2026 चल रहा है, तो अभी हमारा टारगेट क्या आया, 2028 का टारगेट आया, राइट। सो अब हम सेकेंड सेक्शन की बात करने वाले हैं, पेमेंट विजन 2028 की, जो कि यहाँ से आपका सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि अभी तक जो था वो हिस्ट्री रिलेटेड था, तो आप उसको समराइज करके हिस्ट्री के अंदर एक पैराग्राफ डाल सकते हो आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के अंदर, राइट। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर डेफिनेटली वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अच्छा, उससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपको एक ब्रीफ आइडिया है हिस्ट्री का, राइट। तो ये पेमेंट विजन 2028 आपका चैप्टर 2 से चालू होता है, एंड व्हाट इज द कोर थीम, शेपिंग इंडियाज पेमेंट फ्रंटियर। दिस इज द कोर थीम विच यू शुड नो, राइट। So here it underscores the dual imperative of consolidating and strengthening the existing system. First thing is we have to strengthen the existing system, while at the same time we have to make strong future payment capability and infrastructure as well, right? So this is a kind of para that you can easily use in your descriptive writing, right? So यहीं से आपका descriptive writing practice चालू हो जाता है। जैसे जैसे you are completing the chapters of finance or any other subject, you can start practicing the questions as well. और हमारे यहाँ पे भी descriptive writing batch definitely launch होने ही वाला होता है, right, होने ही वाला है। So I think from April only it is starting from the very first week, so you can join that as well. So in section 2, a brief background which we have already covered, the theme of the section is given, right, और फिर कुछ strategic objectives हैं
related to strengthening and resilience and reliability of the payment system, improving trust and safety in the digital payments, right? कि आप डिजिटल पेमेंट्स यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर सेफली ट्रांजैक्शंस हो एंड फ्रॉड एंड एरर के केस मिनिमाइज हो जाए, राइट? उसके अंदर AI, बिग डेटा एनालिटिक्स हो, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का इवॉल्वमेंट हो, तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि बिना इंटरनेट के डिजिटल पेमेंट्स पे वर्क कर रही हैं, आपने देखा होगा, राइट? काफ़ी सारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वर्क कर रही हैं. there are so many things in the I will say last 3 months in the digital payment. देन स्ट्रेटेजिक फोकस एरियाज, तो इसके बारे में तो हम डेफिनेटली डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं. सबसे पहला है प्रमोटिंग इंटर ऑपरेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द सिस्टम लाइक ट्रेड्स, राइट? सो सबसे पहले इसी एरिया के बारे में बात कर लेते हैं, राइट? ये पूरा आपका सेक्शन 2 दे रखा है, यहाँ पे मैंने हर चीज़ हाईलाइट करी और हम डिटेल में भी अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेड्स. व्हाट इज ट्रेड्स? ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम. इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? ट्रेड होता है. सो द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म इज डेफिनेटली अमेजिंग, बट द प्रॉब्लम इन ट्रेड्स इज as of now there is no interoperability. That means if platform A is there, you can only use the benefits and structure of platform A, not the platform B. Why? Because there is no interoperability at all. There is no interoperability at all. I'll be giving you an example as well. उससे ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी, right? So Trades is nothing but an electronic platform where the MSME, let's suppose I am an MSME, I sold some goods. I sold some goods on credit. I sold some goods on credit to Mr. A, right? Now when I'll be receiving money after 3 months, let's suppose after 3 months, so what I can do is I can get this invoice discounted on Trades, right? So it's the electronic platform where the MSMEs can sell their invoice. I can sell this invoice of Mr. A to a bank or an NBFC at a discounted price. Let's suppose the price is 1 lakh rupee. Now Trades will give me 95,000 rupee immediately. So I can get immediate cash and accordingly Trades can earn 5,000 rupee as a discounting charge or as a commission. Definitely the time value of money. Why? Because Trades तो मुझे आज का आज ही पे कर रहा है तो थोड़ा सा कम करेगा और कुछ तो Trades भी कमाएगा, right? So this is nothing but an electronic platform which will give me the money right now. So I'll be having enough liquidity from today itself and later on Mr. A क्या करेगा? पूरा का पूरा 1 लाख रुपये पे कर देगा Trades को. This is how it works, right? This is how it works. But the problem here is there are so many platforms in Trades and each platform is operating separately. Say for example 2 platform है, platform number 1 and platform number 2. नाउ MSME ने अपलोड कर दिया इनवॉइस ऑन प्लेटफॉर्म नंबर ए. अब प्लेटफॉर्म नंबर ए पे 2 ही बैंक रजिस्टर्ड है, बैंक 1 एंड बैंक 2. सो इन 2 ही बैंक से बिड आ सकती है MSME को. सो आप मान लो पहले बैंक ने बिड किया 9.8 लाख, दूसरे बैंक ने बिड कर दिया 9.75, तो डेफिनेटली आप 9.8 लाख रुपीज रिसीव करना चाहोगे ना, राइट? 10 लाख का बिल था, उसमें से 9.8 रिसीव करना चाहोगे. तो यहाँ आपके पास ऑप्शंस कम आ गए. प्लस आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो बैंक्स थे उनको आप एक्सेस ही नहीं कर पाए. तो क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ इंटर ऑपरेबिलिटी का बहुत प्रॉब्लम है, राइट? नाउ दिस इज रिजल्टिंग इन इश्यूज लाइक दिस रिड्यूसेस द कंपटीशन, नंबर ऑफ बिडर्स, राइट? एफिशिएंसी ऑफ प्राइस डिस्कवरी अच्छे से नहीं हो पा रही, बहुत सारे बैंक्स आके पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे. सो नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग दैट RBI इज गोइंग टू डू बिफोर 2028 इज टू मेक द ट्रेड्स इंटर ऑपरेबल. इसको यहाँ पे इंटर ऑपरेबल किया जाएगा, मतलब यहाँ पे सेम MSME कैन अपलोड इनवॉइस ऑन प्लेटफॉर्म ए. एट द सेम टाइम द बैंक्स ऑफ प्लेटफॉर्म ए प्लस द बैंक्स ऑफ प्लेटफॉर्म बी कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द बिडिंग प्रोसेस. तो अब यहाँ पे बिड्स बढ़ जाएंगी, राइट? सो बिड्स बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली आप जो सबसे हाईएस्ट बिड आएगी उसको सेलेक्ट करोगे तो यू विल बी गेटिंग अ बेटर प्राइस, राइट? इससे लिक्विडिटी बेटर होने वाली है क्योंकि इंटर ऑपरेबल भी यहाँ पे एक बैंक जो एक प्लेटफॉर्म के साथ रजिस्टर्ड है, दूसरे बैंक्स भी आके उनके साथ बिड कर सकते हैं, राइट? सो दिस बिकम्स इंटर ऑपरेबल. फिर कुछ स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे. द वेरी फर्स्ट वन इज फैसिलिटी फॉर द रेमिटर टू अनेबल और डिसेबल ट्रांजैक्शंस ऑन एनी डिजिटल पेमेंट मोड थ्रू द इशूअर चैनल. अब होता क्या है ना, देखो अभी ये फैसिलिटी कार्ड के अंदर गिवन है.
राइट। सो आपके जो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उसके अंदर आप जाके डोमेस्टिक पेमेंट्स या इंटरनेशनल पेमेंट को ऑन या ऑफ कर सकते हो, ऐसी फैसिलिटी अभी गिवन है, राइट। बट दूसरे पेमेंट मेथड्स के अंदर जैसे यूपीआई हो गया, उसके अंदर ये फैसिलिटी नहीं है, राइट। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिमिलर काइंड ऑफ अ फैसिलिटी शेल बी एक्सप्लोर्ड। दूसरे पेमेंट मेथड्स के लिए भी इसी तरह की ऑन एंड ऑफ, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ फैसिलिटी लाने का यहाँ पे आरबीआई ने बात करी है, राइट। सो दिस विल डेफिनेटली अलाउ द कस्टमर टू अनेबल और डिसेबल द डिफरेंट digital payment modes through issuer channel such as bank application or cards. So you guys can easily control the payments, right? You can switch them on, you can switch them off based on your own choices, right? So strengthening of digital payment and safety, तो यहाँ पे इससे definitely digital payment और safety enhance होने वाली है customers के लिए। Second thing जो specific initiatives के अंदर given है, रिपोर्ट ऑन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो क्रॉस बॉर्डर जितने भी पेमेंट्स हो रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग अच्छे से की जाएगी। सो आरबीआई इज गोइंग टू पब्लिश अ सेपरेट रिपोर्ट ऑन द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स टू प्रेजेंट अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इन इंडिया, कवरिंग मेट्रिक्स लाइक कितना वॉल्यूम है, कितना ट्रांजैक्शन का कॉस्ट आ रहा है, क्या ट्रांसपेरेंसी है, कितनी जल्दी ट्रांजैक्शन हो रहा है और कैसी कैसी परफॉर्मेंस आ रही है ट्रांजैक्शंस की। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को एक और रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी विच इज़ द रिपोर्ट ऑन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, राइट। तो इसके ऊपर भी प्लानिंग आरबीआई कर रहा है। अच्छा, अभी सर ये सब हमारे क्या काम आने वाला है? तो देखो ये आप सबके बहुत काम आने वाला है। ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिजिटल पेमेंट्स के अंदर क्या क्या आरबीआई की इनिशिएटिव्स ले रहा है, तो वहाँ पे आप इस रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हो, राइट। आप वहाँ पे पेमेंट विजन रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हो 2028 को, और वहाँ पे ये सारे पॉइंटर्स लाइन बाय लाइन आपको लिखने पड़ेंगे, right? Next one is review of cross-border payment ecosystem with an objective to increase the efficiency of the cross-border payment। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इकोसिस्टम को पूरा चेक किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, और उसमें कहाँ कहाँ एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है, राइट, उसके ऊपर दिमाग लगाया जाएगा। सो यहाँ पे आने वाले टाइम में ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जो कि काफ़ी सपोर्टिव होगा फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स, स्पेसिफिकली फॉर दी एमएसएमई सेक्टर, स्पेसिफिकली फॉर दी एमएसएमई सेक्टर, ताकि उनको ग्लोबल मार्केट्स का एक्सेस मिले, राइट। फटाफट से पेमेंट आ जाए और काफ़ी सस्ते में ट्रांजैक्शन हो जाए, प्लस अ हाई लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज देयर। सो आरबीआई इज गोइंग टू एनविजन अ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फ्रेमवर्क, राइट, that is efficient, that is transparent and that is resilient, so that a broader range of participation we can see in the cross border transaction as well. उसके बाद एक और प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम समझना, streamlining the cross border payment authorization under the PSS which is the Payment and Settlement System Act। तो अभी एक तो PSS एक्ट बना हुआ है, राइट, और एक फेमा गाइडलाइंस बनी हुई है, फेमा एक्ट भी बना हुआ है। सो प्रॉब्लम क्या है ना, अभी इन दोनों का सेपरेट डोर है। पहले आप PSS के अंदर एंट्री लेते हो, फिर आप फेमा के अंदर एंट्री लेते हो। आरबीआई चाह रहा है कि क्यों ना हम इनका एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बना दें। क्या बना दें? सिंगल विंडो एप्लीकेशन प्रोसेस बना दें, राइट। सो अ सिंगल विंडो ऑथराइजेशन फॉर द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। अभी अगर किसी को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करना है तो इट मस्ट ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, फिर उसके बाद फेमा एक्ट के अंदर परमिशन लेनी पड़ती है। रादर आरबीआई इज प्रपोजिंग अ सिंगल विंडो एप्लीकेशन सिस्टम, उससे दोनों एक्ट के अंदर परमिशन मिलने लग जाएंगी, राइट। फिफ्थ वन इज लिमिटिंग द लायबिलिटी ऑफ द कस्टमर एंड इंट्रोड्यूसिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क। The existing limited liability framework for safeguarding the customer from the payment frauds, the responsibility and liability is exclusively for the issuer only। देखो अभी क्या होता है ना, यहाँ पे सिर्फ इशूअर बैंक की, द कस्टमर बैंक इज सोली लाइबल एज ऑफ नाउ एज पर द एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क, ओनली द इशूअर बैंक इज लाइबल, राइट। सो यहाँ पे आरबीआई चाहता है कि यार लाइबिलिटी एक्सक्लूसिवली सिर्फ इशूअर पे ना रहे, रादर देन इट शुड बी हैव बैलेंस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। वी शुड बी हैविंग अ बैलेंस्ड shareable responsibilities. So the customer's bank, the issuer bank and the beneficiary bank will jointly bear the liability arising from the unauthorized digital payment transaction. So जिसने इशू किया है, राइट, ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया है, वो भी लाइबल होगा, और जिसके पास होने वाला था बेनिफिशियरी बैंक, वो भी लाइबल होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर हो जाएगी, फ्रॉड का अमाउंट भी शेयर हो जाएगा, रादर देन पुटिंग अ एडिशनल बर्डन ओनली ऑन जस्ट वन पार्टी, राइट।
सो इससे रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पे आने वाली है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना पड़ेगा इन द हेडिंग इनिशिएटिव्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट, विजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली. सो रिकॉग्नाइजिंग द स्मॉल पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स एंड परपेचुअल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स. तो अब समझना यहाँ पे क्या सीन है. कुछ स्मॉल पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स होते हैं, अब उनके ऊपर इतने सारे रेगुलेशंस आ जाते हैं कि वो काम ही नहीं कर पाते ढंग से, राइट, बिकॉज देयर आर सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन दैट यू हैव टू कंप्लाई इफ यू वांट टू बिकम अ पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर. सो उनके लिए क्या कर दिया गया, एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के बारे में बात किया गया. द एम इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ टेलर रेगुलेटरी ओवरसाइट मैकेनिज्म rather than bombarding them with too many, I will say, rules and regulations. So यहाँ पे बोला गया कि एक काम करो यार, जो स्मॉल पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं, SPSPs हैं, उनके लिए एक काम करो, नई कैटेगरी बना दो. सबसे पहले तो SPSP नाम की, स्मॉल पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर, राइट. फिर उनको ऑपरेट करने दो विदाउट फुल ऑथराइजेशन, क्योंकि अगर वो पूरी ऑथराइजेशन लेने जाएंगे तो रूल्स एंड रेगुलेशंस में ही फंसे रह जाएंगे, राइट. एंड फॉर दैट वी डू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स. सो उनके लिए बोला गया कि एक परपेचुअल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स लेके आओ जो चलता ही जाएगा, क्योंकि हमारे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर तो आपको याद हो तो एग्जिट लेना पड़ता है. अल्टीमेटली यू हैव टू एग्जिट आफ्टर टेस्टिंग योर प्रोडक्ट, बट हियर दे विल बी इन द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ओनली, जहां पे उनको काफी कम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे और उनको पूरा फुल फ्लेज्ड ऑथराइजेशन लेने की जरूरत नहीं है. कहने का मतलब यहाँ पे जो इवॉल्विंग फिनटेक स्टार्टअप्स हैं, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की जगह, पूरा अप्रूवल लेने की जगह एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर रह सकते हैं. एंड दे कैन डेफिनेटली, RBI is going to here encourage the innovation, reduce the entry barriers for them and allowing them testing their new payment solution without fulfilling all the requirements, all the rules and regulations or all the authorization process. So यहाँ पे ये specifically एक small payment सिस्टम प्रोवाइडर्स के लिए एक परपेचुअल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाने की बात की गई है, राइट. सो यहाँ पे ऑपरेशनल हो पाएंगे इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर सो मेनी RBI ऑथराइजेशन. नेक्स्ट वन, डेवलप द पेमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग कैपेसिटी. तो यहाँ पे बात करी कि यार आप लोग रिसर्च कैपेबिलिटीज बनाओ डिजिटल पेमेंट के अंदर, अपने रिसर्च को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दो, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ फ्रॉड प्रिवेंशन, साइबर सिक्योरिटी, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को ज़्यादा से ज़्यादा लेके आओ, क्योंकि अब हम ग्लोबल जाने का प्लान कर रहे हैं. आप देख सकते हो RBI के कितने सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि ग्लोबली काम कर रहे हैं रिलेटेड टू इंटरनेशनल पेमेंट्स, राइट. इनोवेशन और इंटरऑपरेबिलिटी इन द ट्रेड्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली है. तो यहाँ पे बात करी कि एक तो फुल इंटरऑपरेबिलिटी लेके आओ कि एक दूसरे के प्लेटफॉर्म से इंटरऑपरेबल हो जाए. तो ऐसा नहीं कि यार रिस्ट्रिक्टेड कुछ बैंक्स, मान लो मैं एक MSME हूँ, मैं प्लेटफॉर्म नंबर A के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो प्लेटफॉर्म नंबर B के बैंक मुझे रीच आउट नहीं कर पा रहे. वो बोल रहे हैं कि इंटरऑपरेबल बना दो ताकि MSMEs को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा हो जाए. इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टरिंग विथ रिकोर्स. अच्छा, ये विथ रिकोर्स क्या होता है? किसी को कुछ आइडिया है इसके बारे में? कैन एनीबडी टेल मी अबाउट दिस विथ रिकोर्स फैक्टरिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विथ रिकोर्स फैक्टरिंग? विथ रिकोर्स फैक्टरिंग का मतलब ये होता है कि मान लो मैंने तो मेरा डिस्काउंट करवा दिया किसी बैंक से, राइट, मैंने मेरा इनवॉइस डिस्काउंट करवा दिया किसी बैंक से. अब आगे जाके कभी उस कस्टमर ने उस बैंक को पे नहीं किया तो फिर क्या होगा? फिर किसकी लायबिलिटी है, मेरी या बैंक की या फिर ट्रेड्स की? तो उस केस के अंदर मेरी लायबिलिटी इंस्टेब्लिश हो जाएगी. अगर ये रिकोर्स फैक्टरिंग है तो द कोर्स विल रीबाउंड, राइट, द कोर्स विल रीबाउंड और मुझे उसका पैसा देना पड़ेगा इन केस ऑफ रिकोर्स फैक्टरिंग, इन केस ऑफ कस्टमर डिफॉल्ट, राइट. सो डिस्काउंटिंग फॉर दी एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स ऑफ MSME. तो यहाँ पे फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ते हैं, फोरफेटिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के अंदर आप एक एक्सपोर्टर हो तो आपको फॉरेन से पैसा आने वाला है. अब वो 6 महीने बाद आएगा तो क्या आज ही उसको आप डिस्काउंट करवा के रिसीव कर सकते हो. इसको हम फोरफेटिंग बोलते हैं, राइट. तो ये सारी सिस्टम के ऊपर यहाँ पे बात की गई है कि हमको इसको इनिशिएट करना है ताकि MSME को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो पाए. फिर उसके बाद आया साइबर की रिस्क इंडिकेटर्स फ्रेमवर्क फॉर द नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर. सो यहाँ पे अब कुछ साइबर की रिस्क इंडिकेटर्स का इंट्रोडक्शन किया जाएगा फ्रेमवर्क का, स्पेशली फॉर द नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स.
इसको डेवलप किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा और ये फ्रेमवर्क डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी रॉबस्ट होने वाला है इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, राइट। और RBI, इट शैल अनेबल द RBI टू सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाई एंड मॉनिटर की रिस्क इंडिकेटर। अब अगर मैं की रिस्क इंडिकेटर के हिसाब से ट्रैक करने लग जाऊंगा सो डेफिनेटली ये मेरी साइबर रेजिलियंस बढ़ा देगा। साइबर रेजिलियंस मतलब अगर कभी भी कोई साइबर अटैक होता है तो कितनी जल्दी आप उससे काउंटर कर पाते हो, राइट, कितनी जल्दी आप सही कर पाते हो उसको। सो दिस फ्रेमवर्क विल ऑल्सो बी देयर हियर, राइट। सो ये मेजरेबल इंडिकेटर्स होने वाले हैं दैट विल बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ साइबर सिक्योरिटी रिस्क इज देयर इन योर बिजनेस, राइट। अच्छा, अभी जो हम चेक्स यूज करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं करते हो, हम फिजिकल चेक्स करते हैं, right? Definitely we have implemented the check truncation system. Earlier we used to follow the batch system, now we follow the continuous processing and clearing system, right? But RBI is going to review the check security and introduction of the electronic checks as well. E-checks भी लेके आएंगे RBI आने वाले टाइम में, ये इनका विजन है 2028 का, right? So this will definitely enhance the fraud prevention, right? फैसिलिटेट एनहांस्ड एक्सेस टू पेमेंट डेटा, तो जो अभी पेमेंट का डेटा होता है उसका ज़्यादा एक्सेस मिलेगा आने वाले टाइम में। उससे क्या होगा, AI लगा के और बिग डेटा टेक्निक्स लगा के डेटा को फिल्टर करके काफ़ी सारे पैटर्न्स यहाँ पे हम पता कर पाएंगे और इंटेलिजेंटली डिसीजंस ले पाएंगे। एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू एनहांस दी ट्रांसपेरेंसी, प्लस मॉनिटरिंग भी बढ़ेगी और डेटा ड्रिवन एक अप्रोच बन पाएगी। तो डेटा को स्ट्रीमलाइन करने के लिए यहाँ पे भी RBI ने एक एक्शन लिया है। देन रीइमेजिनिंग द कार्ड पेमेंट इकोसिस्टम, तो कार्ड पेमेंट इकोसिस्टम को RBI इंटेंड्स टू बिल्ड अ मोर ओपन एंड इंटरऑपरेबल कार्ड इकोसिस्टम। सो यहाँ टोकनाइजेशन पे बहुत फोकस किया जाने वाला है। टोकनाइजेशन इज अ न्यू टर्म, इसको हमने एक फाइनेंस करंट अफेयर सेशन में भी पढ़ा था, राइट। ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, मर्चेंट चॉइसेस, एनहांस सिक्योरिटी विल बी देयर रिलेटेड टू कार्ड। तो कार्ड को नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस पे लेके जाया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा के और सिक्योरिटी बढ़ा के। प्लस क्रिएशन ऑफ AI बेस्ड पेमेंट डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, अब यहाँ पे पेमेंट डेटाबेस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी एम्बेड किया जाएगा। RBI इज प्लानिंग टू क्रिएट अ सेंट्रलाइज डेटाबेस फॉर द पेमेंट सिस्टम डेटा। तो अब एक सेंट्रलाइज डेटाबेस हो जाएगा जहाँ पे सारा पेमेंट सिस्टम का डेटाबेस हो गया। उस सिस्टम में AI लगा के एनालिसिस किया जा सकता है कि क्या पेमेंट के ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या रिस्क के ट्रेंड्स आ रहे हैं, तो वहाँ से फ्रॉड्स एंड एरर को भी प्रिवेंट किया जा सकता है, प्लस प्रिडिक्ट किया जा सकता है। So this is the level of, I will say, work RBI is going to do 2028 तक। फिर उसके बाद पेमेंट स्विचिंग सर्विसेज। नाउ व्हाट इज दिस पेमेंट स्विचिंग सर्विसेज? अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझते हैं। अभी समझना आप, PSS will allow the customer to transfer all the payment instruction from one bank account to another bank account। समझना, मेरा अकाउंट है HDFC बैंक में, ठीक है, तो मेरा नेटफ्लिक्स का पेमेंट, मेरा चैट GPT का पेमेंट, मेरे सारे AI टूल्स का पेमेंट कहाँ से जाता है? HDFC बैंक से जाता है। अब कल को जाके मैंने मेरा बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करके IDBI बैंक में खुलवा लिया, सो व्हाट विल हैपन टू माय नेटफ्लिक्स पेमेंट, व्हाट विल हैपन टू माय चैट GPT पेमेंट? मुझे वापस सेटअप करना पड़ेगा, आने वाले टाइम में नहीं करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट पेमेंट स्विचिंग सर्विसेज। नाउ इफ यू आर ऑलरेडी shifting your bank account from one bank account to another one, you don't have to do the shifting of all the services related to payment। यहाँ ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन हो जाएगा और जितने भी आपके सब्सक्रिप्शंस थे, ऑटो डेबिट थे, इनकमिंग पेमेंट्स थे, वो अब IDBI बैंक के अंदर होने लग जाएंगे, राइट। सो द प्रॉब्लम टुडे इज, आप बैंक अकाउंट जैसे ही चेंज करोगे आपको वापस EMIs, SIPs, OTT सब्सक्रिप्शन, सैलरी क्रेडिट, हर चीज़ को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा एक एक करके दूसरे नए वाले अकाउंट के अंदर, या फिर आपको इंटीमेशन देने पड़ेंगे कि भाई अब इस अकाउंट से नहीं उस अकाउंट से काटो, राइट। एंड पेमेंट स्विचिंग सर्विस इज गोइंग टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम। सो दिस इज नथिंग बट पेमेंट स्विचिंग सर्विस। जो भी पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड सर्विस है यूं की यूं आपकी नए अकाउंट के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग विच इज स्केड्यूल्ड इन योर ओल्ड बैंक अकाउंट, राइट। और यहाँ पे ब्रिंगिंग एंटिटीज प्लेइंग क्रिटिकल रोल इन द पेमेंट इकोसिस्टम विद इन द रेगुलेटरी एम्बिट। सो काफ़ी सारी यहाँ पे एंटिटीज़ हैं, उनको रेगुलेटरी एम्बिट के अंदर लाया जाएगा। सो काफ़ी सारी ऐसी एंटिटीज़ जो फैसिलिटेट कर रही हैं डिजिटल पेमेंट के अंदर। इन एडिशन ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस हो गई, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स हो गए जो कि यहाँ पे अनेबल कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस को, उन सब को भी केस टू केस बेसिस पे, राइट, हमारे पेमेंट सिस्टम के रेगुलेटरी एम्बिट
के अंदर लेके आया जाएगा। तो डेफिनेटली काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे बनने वाले हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटिंग अ यूनिफॉर्म डोमेस्टिक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। अब ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर का केस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट भी है प्लस ये एग्जाम में आने लायक भी है। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है फॉर द नॉन इंडिविजुअल्स that would enable the identification of the parties to the transaction is crucial for managing the risk in the financial system. कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसका एक नंबर जनरेट होना चाहिए। इट शुड बी डोमेस्टिक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, स्पेशली जो नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज हैं, राइट। सो द आरबीआई में इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म डोमेस्टिक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, द एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर. So this would help to identify the parties that are actually involved in the financial transaction. तो मान लो एक financial transaction हुआ A और B के बीच में, तो यहाँ इन दोनों केस में एक डोमेस्टिक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर होना चाहिए जिससे हम A को और B को ट्रांजैक्शन लेवल डेटा पे आइडेंटिफाई कर पाएँ. This is quite similar to the global legal entity identifier which is as of now used in the financial market, और उसी को हम यहाँ पे डोमेस्टिक LEI नंबर के रूप में लाना चाहेंगे, राइट. सो ये सारे स्टेप्स है गाइस. तो 15 स्टेप्स हैं जो हमने आज यहाँ पे पढ़े, राइट, इन दी चैप्टर ऑफ स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स. अभी इन्हीं को ही मैंने यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया है यूजिंग द AI टूल्स. तो यहाँ पे आप डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर मैंने इनको AI टूल्स यूज़ करके डिवाइड किया. इनको आप लेटर ऑन भी ग्राफिकल मैनर के अंदर भी पढ़ सकते हो, राइट. सो ये 15 चीज़ें हमको याद रखनी है. इससे क्या होने वाला है, देखो, अगर कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको आंसर कर पाओगे, राइट. कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रिलेटेड टू पेमेंट सिस्टम, वहाँ पे आप इस रिपोर्ट के बारे में, विजन स्टेटमेंट के बारे में, राइट, आरबीआई पेमेंट विजन 2028 को मेंशन कर पाओगे, उसका एक बैकग्राउंड दे पाओगे अबाउट ब्रीफ हिस्ट्री, प्लस ये सारे पॉइंटर्स को एक समराइज्ड मैनर के अंदर लिख पाओगे. हम आपके डिस्क्रिप्टिव सेशंस के अंदर इन तरह के टॉपिक्स का भी प्रैक्टिस डेफिनेटली करने वाले हैं, right. So guys, if you are preparing for the RBI grade B examination, you can definitely check out this course as well. Thank you so much. Bye bye, take care, see you soon in some other video. Have a great day.